اپنے ہوائی اڈوں کے اوپر انتظامات جو ہیں اسکریننگ کے مضبوط بنائیں. ہماری جو کوآرڈینیشن ہے صوبوں کے ساتھ وہ اس میں بتدریج بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. اب ہمارے پاس فوکل پوائنٹس ہیں سارے صوبوں کے اندر. ہمارے پاس ویریفائڈ انفارمیشن ہوگی صوبوں سے جو ہم ان فوکل پوائنٹس کے ذریعے. ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 94 ہو گئی. صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. قوم نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا. کورونا کو بھی شکست ہوگی. وزیر اعظم کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. ہم میکسیمم دن میں 200 ٹیسٹ کر سک رہے ہیں. ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگیٹو بھی آ گئے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ آج نیگیٹو اور کل پازیٹو آ سکتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو, کوئی ٹریول ہسٹری ہو یا نہ ہو, سوشل ڈسٹینسنگ ایک دوسرے سے دور رہیں. اور اس کا علاج یہ تفتان سے آنے والے 11 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے. چین سے آنے والوں میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی. سکھر قرنطینہ میں 800 افراد موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس. ہمارے ملک میں نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, خاص طور پہ صوبہ سندھ میں بڑھ رہے ہیں. جو چیزیں ہم نے طے کی ہیں یہ بھی اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے حالات 30 مئی تک ٹھیک ہو جائیں. جس مصیبت سے ہم اور پوری دنیا مبتلا جس مصیبت میں اور سامنا کر رہے ہیں, جن مشکل حالات کا, ہم اسے نکل آئیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ صوبے میں تعلیمی سال کا آغاز 1 جون سے ہوگا. امتحانات 15 جون سے ہوں گے. پہلی سے 8ویں جماعت کے طلباء کو پروموٹ کرنے کی ترتیب. ڈیرہ غازی خان کے قرنطینہ سینٹر میں ایران سے آنے والے 2 زائرین میں کورونا وائرس کی تصدیق. نیشتر ہاسپٹل ملتان منتقل. خیبر پختونخوا پہنچنے والے 15 افراد کی رپورٹس بھی مثبت. قرنطینہ پہنچا دیا گیا. کافتان ہاؤس میں کورونا وائرس کی تشخیص کا انتظام نہیں تھا تو قرنطینہ کیوں بنایا گیا؟ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی کا سوال. سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف. سپریم کورٹ میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر. چیف جسٹس کے رجسٹرار کو ہدایات جاری. ملازمین کو بائیو میٹرک حاضری سے روک دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سرجیکل ماسک اور سینیٹائزر کی عدم دستیابی کا سخت نوٹس. متعلقہ حکام طلب. کورونا وائرس کے خلاف مؤثر اقدامات کی کمی. بلوچستان ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت پر اظہار برہمی. چیف جسٹس نے کہا کیا وفاقی نمائندے عدالت کو بھی نہیں مانتے. سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی کمی. مارچ میں زائد المیعاد ینگ ڈاکٹرز نے کورونا سے بچاؤ کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات پر سوالات اٹھا دیے. پاک افغان سرحد بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند. سرحد پر میڈیکل اسٹاف اور پاک فوج کے جوان تعینات. لاہور میں پی ٹی آئی ارکان نے خود ہی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دی. چیرنگ کراس پر کورونا سے بچاؤ کی آگاہی واک کا اہتمام. ماسک بھی بانٹے. کورونا وائرس سے شادیاں بھی روک دیں. شادی ہاؤس بند. نئی زندگی شروع کرنے کے خواہش مند ارمان دل میں لیے رہ گئے. دفعہ 144 کے باوجود شادی کی تقریب. پولیس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. نیپال پور میں شادی کی تقریب پر چھاپا. دلہا اور باراتی حوالات پہنچ گئے. چوبارہ میں دلہن کا والد خلاف مقدمہ درج. کورونا نے سیاحوں کو محفوظ رکھنے کا اقدام. ایوبیا چیئر لفٹ سروس بھی عارضی طور پر معطل.
157 ممالک کورونا کا شکار، 1,75,000 سے زائد متاثر، ہلاکتوں کی تعداد 6,700 سے تجاوز کر گئی، 77,800 سے زائد صحت یاب ہو گئے۔ کورونا کا خوف، سعودی عرب میں ایمرجنسی نافذ، تمام محکمے 16 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ برطانیہ میں کورونا کے خوف کے سائے گہرے ہونے لگے، لاک ڈاؤن کا خدشہ، سٹورز پر رش بڑھ گیا، شیخ اور انوش کی ذخیرہ اندوزی، سٹورز خالی ہو گئے۔ شفا اسی کی جانب سے ملتی ہے، علماء کرام کی اللہ کا ذکر زیادہ کرنے کی ہدایت۔ کورونا وائرس کی روک تھام، حکومت IMF سے رعایت حاصل کرنے میں کامیاب، مشیر خزانہ نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی خوشخبری سنا دی۔ قومی خزانے پر بوجھ، سرکاری اداروں کی نجکاری قومی مفاد میں ہے، وزیر اعظم کا معاشی ٹیم کے اجلاس سے خطاب، نجکاری کا مقصد معاشی خسارے میں کمی لانا قرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2300 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ٹریڈ 33,600 سے زائد پر بند۔ نیب پکڑنا نہیں چاہتا تو امیر مقام کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ اساتذات کیس میں امیر مقام کو گرفتاری سے 10 دن پہلے آگاہ کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل۔ گلف اور ریشما رینٹل پاور ریفرنس، راجہ پرویز اشرف کے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بریت کی مخالفت، سابق وزیر اعظم کے خلاف شواہد موجود ہیں، نیب کا موقف۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرط کو پورا کرنے کا فیصلہ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان متحرک۔ کراچی میں ایک اور عمارت گرنے کو تیار، کوثر نیازی کالونی میں 4 منزلہ عمارت ایک طرف جھک گئی، رہائش پذیر خاندانوں کو نکال لیا گیا۔ سندھ حکومت غیر معیاری بلڈ بینکس کے خلاف مہم شروع کیوں نہیں کرتی؟ عدالت کے دماغ، فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ رحیم یار خان میں مضر صحت، دودھ پینے سے 2 پھول مرجھا گئے، بھوک لگنے پر 2 سال کی دعا اور 3 سال کے فضائیں، دودھ پیا تو جان چلی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا 36 اضلاع میں کریک ڈاؤن، 35,977 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ پال بحری کی مرسیز پاک 2020 کی ڈی بریف سیشن کا کراچی میں انعقاد، نیول چیف کی بطور مہمان شرکت، آپریشنل منصوبوں کا جائزہ پیش کیا گیا۔ آزاد مجھے جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی، جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی، کتنے وانی تو مارے گا، میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو کے 225 روز، بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری۔
ओह, छोटी सी गुड़िया की बड़ी महारत, बर्फपोश ट्रैक पर स्नो बोर्डिंग का मुजाहरा। 6 साल बच्ची की महारत ने देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। खबरनामे में हमारा साथ देंगे अरसलान खोखर। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की और वजीर आजम इमरान खान के इकदामात और अहकामात की। तो वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि इस मसले का मुकाबला करना है। पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला खंदा पेशानी और साबित कदमी से किया है। इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के खिलाफ भी कौमी सतह पर मुश्तरका काविश सामने आएगी। और इक़दामात करने की गर्ज से कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़रा, मुशीर और मामनीन खुसूसी ने वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, वायरस की रोकथाम के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों के नतीजे में अब तक किए जाने वाले इक़दामात और दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आइंदा के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़रा आला ने सूबाई सतह पर कोरोना वायरस की सूरत हाल और इसकी रोकथाम के हवाले से ताजावीज पेश की। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत को कोरोना वायरस के मसले की संजीदगी का मुकम्मल इदराक है और इस ज़मन में हुकूमती सतह पर हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि अवाम को इस मसले की संजीदगी के बारे में आगाही फराहम की जाए और वायरस की रोकथाम के हवाले से शऊर को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की जानब से आज खुद और रज़ाकाराना तौर पर मुमकिन हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से वायरस की मजीद फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। इस हवाले से वो बहुत जल्द कौम से खिताब करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 94 है। सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर शाम 5 बजे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स यानी कि पेशेंट्स विद कंफर्म्ड कोरोना वायरस इन देयर बॉडीज, वो जब टेस्ट बतदरीज आने लगे तो वो नंबर फिर 94 तक पहुंच गया और हमारे पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी सूबों से जो हम उन फोकल पॉइंट्स के जरिए इकट्ठी करेंगे और मैं जो आपको ये अपडेट दिया करूंगा ये एक मुस्तनद फिगर्स के ऊपर मबनी होगा और ये फिगर्स नेशनल फिगर्स होंगी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको तमाम कौम ने मिल के इसको एड्रेस करना है। जब तक हम तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां इस सिलसिले में पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी के फैलाव को रोक नहीं पाएंगे। सिंध हुकूमत भी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं केसेस बढ़ने के इम्कानात हैं, हक़ाइक़ नहीं छुपाएंगे। इस मर्ज का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, हमें बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात करना होंगे। इस वक्त तक 110 टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से 50 पॉजिटिव हैं और 60 नेगेटिव हैं। सक्खर वाले ताफ्तान से जो आए थे जो सक्खर में, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हमने एक चीज नहीं छुपाई है। 50 पॉजिटिव हैं, 60 नेगेटिव हैं। आपने मिलना नहीं है। जो भी शख्स किसी और से मिलता है तो वो दोनों का डे 1 उस दिन से शुरू होगा। मतलब वैसे तो वो 14 दिन बाद हम छोड़ देंगे उनको, अगर इंशाल्लाह ताला कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं 14 दिन में, लेकिन अगर 10वें दिन 4 लोग मिलते हैं तो उन 4 लोगों का पहला दिन उस दिन शुरू होगा। ये उनको आप वाजे करें ताकि ये डिसिप्लिन आए। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं सिंध में नया तालीमी साल जून 2020 से शुरू होगा। सेकेंडरी बोर्ड के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे। उन्होंने पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने की तरदीद भी कर दी। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने महकमा तालीम के स्टेयरिंग कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में हमारे बेहतर हालात हैं। अल्लाह करे हमारे हालात 30 मई तक ठीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि 1 जून से 15 जून तक पहली से 8वीं जमातों के इम्तिहानात होंगे, जिसके बाद नई क्लासों का आगाज होगा। 9वीं 10वीं के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे, जबकि 6 जुलाई से इंटर के इम्तिहानात होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम ने बताया कि 15 अगस्त को 10वीं और 15 सितंबर को 12वीं जमात के नताइज जारी किए जाएंगे।
एकेडमिक ईयर पहले शुरू होना था 1 अप्रैल से, वो अब शुरू होगा 1 जून से, और 1 जून से 15 जून तक इम्तिहानात होंगे तमाम जमातों के, जो 9वीं और 10वीं के अलावा। 15 जून के बाद उनकी नई क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। 15 जून 2020 से 9th और 10th क्लास के एग्जाम्स शुरू होंगे। 15 अगस्त 2020 10वीं जमात का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। सईद गनी का कहना था कि कॉलेज में 11वीं और 12वीं जमात का तालीमी साल 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। अदालत के फैसले के मुताबिक तमाम वालिदैन माहाना फीस अदा करें, कोई एडवांस फीस देने की जरूरत नहीं। वज़ीर तालीम ने 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने की तरदीद की और बताया कि किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तमाम क्लासों के इम्तिहानात होंगे। वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि अगर खुदा न ख्वास्ता हालात मजीद खराब हुए तो दोबारा इन फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। तफ्तान से खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने वाले 15 अफराद में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम ने तस्दीक करते हुए कहा, तफ्तान से आने वाले 19 अफराद को DI खान करंतना मरकज में रखा गया था। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के ये पहले पॉजिटिव केसेस हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मरीजों की DI खान के महफूज करंतना मरकज में देखभाल की जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां तमाम लोग खौफ में मुब्तला दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब स्कूल जाने वाले बच्चों के मजे आ गए जो स्कूल की होने वाली छुट्टियों पर बहुत खुश हैं। ताहम पढ़ाकू और पोजीशन लेने वाले तलबा को अपनी तालीम की जरूर फिक्र है। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तालीमी इदारों में की जाने वाली लंबी छुट्टियां स्कूल के बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इन छुट्टियों पर तलबा खूब खुश दिखाई देते हैं। सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में जेर तालीम बच्चे अब अपने घरों में छुट्टियां गुजार रहे हैं और घूमने फिरने का मंसूबा बनाते हुए दिखाई देते हैं। अभी बैट बॉल खेलने लगे थे, हमने कहा आज हम छुट्टियों का मजा ले। इस बार हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, खेलते हैं, फिर बैट बॉल नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर से खेलने लग जाते हैं बैट बॉल। बैट बॉल खेलने चले आते हैं, फिर हम ना आके खाना खाते हैं। दूसरी जानिब मेहनती और पोजीशन लेने वाले बच्चे अपनी तालीम के नुकसान पर फिक्रमंद भी हैं। अल्लाह करे वायरस खत्म हो जाए, फिर कभी भी ना आए। उधर वालिदैन एक जानिब तो कोरोना वायरस की वबा से खौफ में मुब्तला हैं और फिर ऊपर से बच्चों की तालीम के हरज पर भी परेशान हैं। कराची समेत सिंध भर में लाखों बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारों को 30 मई तक बंद किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तालीमी इदारों की बंदिश के बाद लाहौर में निजी तालीमी इदारों ने वर्चुअल क्लासेस के आगाज का इकदाम शुरू कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी इदारों में तो मुमकिन दिखाई नहीं देता, उम्रा के बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन गरीब और मुतवस्सत तबके के बच्चे अपना तालीमी नुकसान पूरा नहीं कर पाएंगे। ज़ैन नकवी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे 3 हफ्तों के लिए बंद किए जा चुके हैं, जिससे तलबा और तालिबात का तालीमी नुकसान हो रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ बड़े सिस्टम्स ने वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दी हैं और कुछ करने जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अमीर तबके के बच्चों के लिए तो घरों में ऑनलाइन एजुकेशन के वसाइल मैसर हैं, लेकिन गरीब और मुतवस्सत अफराद के लिए मुमकिन नहीं। स्कूल इंतजामिया इकदाम कर भी ले तो घरों में बच्चों को वसाइल कौन देगा। निजी शोबा में वर्चुअल एजुकेशन के इकदाम जारी हैं, लेकिन गरीब बच्चों के तालीमी नुकसान का कोई मदावा नहीं। हुकूमत की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों में ऐसी सहूलत महज ख्वाब हो सकता है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए खुसूसी इकदाम नाकाफी करार दे दिए। डॉक्टर्स कहते हैं बलूचिस्तान में हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम चला रही है। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए हुकूमती इकदामात पर आम लोग तो सराफा एहतजाज थे ही, अब बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए इकदामात पर कई सवालात उठा दिए हैं। कोयटा में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान यंग डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम के रहनुमा डॉक्टर यासिर अचिगज़ई और दीगर डॉक्टर्स ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले के लोग तैनात किए गए हैं, ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम यही आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम ये सहूलियात बलूचिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में दी जाए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस को काम करने का माहौल दिया जाए, जिसमें एक हमारे PPEs
पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर कोरोना के पेशेंट को डील करते हुए एक डॉक्टर्स को जो सहूलियात दरकार होती है। लेकिन अभी तक इस हॉस्पिटल में मौजूदा हालत में सिविल अस्पताल BMC में जो किट होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की किट, अभी तक एक किट मुहैया नहीं की गई। डॉक्टर यासिर का कहना था कि कोयटा में सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और दीगर मुतलका अमले के अक्सर अरकान को सर्जिकल मास्क भी ज़ायदुल मयाद फराहम किए गए हैं कि जो मास्क थोड़े बहुत मुहैया किए गए वो भी एक्सपायरी थे। जो भी सामान आ रहा है यहाँ पे सिविल अस्पताल में अभी तक, उसके अलावा जो सैनिटाइजर, इन पर इनकी एक्सपायरी डेट्स तमाम ख़राब कर दी गई है। उसमें जो ना नया लेबल लगाया गया है, इस पे पहले तो ये सामान मुकम्मल नहीं है, फिर जो सामान आ रहा है वो काबिल इस्तेमाल है नहीं। यहाँ यंग डॉक्टर्स ने इस खदशे का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए डॉक्टरों की तजावीज के मुताबिक अगर इकदाम नहीं करेगी तो सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों के साथ साथ मरीज भी बड़े पैमाने पर इस होलनाक वायरस का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची में बाबा कौम कायद आज़म के मज़ार को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कराची में मज़ार कायद को भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया। मज़ार कायद इंतजामिया ने बंदिश का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम के सिलसिले में यह कदम उठाया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आलमी मैशियत की तरह मुल्की स्टॉक मार्केट भी कोरोना बुखार का शिकार हो गई। एक हफ्ते के दौरान 5वें बार स्टॉक मार्केट का पहिया जाम हुआ, ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट की कमी वाक़ई हुई है। जुमेरात से शुरू होने वाला तनज़्ज़ुली का सफर तरक्की ना पकड़ सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई और 100 इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 36,000 से 34,400 की सतह तक गिर गया। 1600 पॉइंट्स की कमी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोक दी गई। वक्फे के बाद दोबारा कारोबार का आगाज हुआ तो मनफी की जानिब सफर करने वाले एशाइये वापस ना पकड़ सके और मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई। गुज़श्ता हफ्ते पीर, जुमेरात और जुमे को भी मार्केट हॉल के तहत ट्रेडिंग 45 मिनट तक बंद की गई थी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹157.50 हो गई है। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर की मुआशी सूरत हाल मखदूश है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल, कॉटन और कोयले की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स शदीद मंदी की लपेट में रही। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत मर्जा आयतुल्लाह उल उज़्मा अलहाज हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उम्मत मुस्लिमा को बाहमी रवाबित बढ़ाने और मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि बाहमी ताउन और एहतियात से ही इस मर्ज से अमान पाई जा सकती है। उम्मत मुस्लिमा के नाम लिखे गए एक पैगाम में आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत मर्जा आयतुल्लाह अल उज़्मा अलहाज हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए कहा है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि खुदा ही हर चीज का खालिक है। इरशाद खुदाबंदी है कि अगर जमीन पर बसने वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते तो हम उनके लिए जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन उन्होंने दीन को जुटलाया और हमने उनको उनके किए हुए अमाल के सबब गिरफ्त में ले लिया। आयतुल्लाह अल उज़्मा अलहाज हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने अपने खत में उम्मत मुस्लिमा को तिब्बी माहिरीन के मशवरे की पाबंदी का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि तिब्बी माहिरीन के मशवरे पर अमल लाजिम है और इसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही शरअन दुरुस्त नहीं है। आयतुल्लाह अल उज़्मा अलहाज हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने इलाज के साथ साथ तौबा का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसी मुहलिक वबा फैली हुई है। हो सकता है ये गुनाहों और सरकशी का नतीजा हो, इसलिए अल्लाह के हुजूर तौबा का रास्ता भी इख्तियार करना लाजिम है। आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी का कहना है कि हमें तौबा का सहारा लेते हुए खुदा के दामन रहमत की जानिब पलटना चाहिए। इसके साथ साथ इमाम ज़माना की शफाअत से मदद हासिल करना चाहिए।
ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا ہے کہ اس وقت پوری انسانیت ایک وبائی مرض کے گھیرے میں آ گئی ہے اور ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں جن کا اپنے رب پر کامل ایمان ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی جائے، دعائیں بہت زیادہ پڑھی جائیں، ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیا جائے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بہت زیادہ ورد کیا جائے۔ اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، بیماریوں کے اسباب بھی اللہ نے بنائے ہیں اور بیماریوں کی شفا کے اسباب بھی اللہ نے خلق کیے ہیں، اور انسان کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے، اور انسان کو اللہ ہی نے شعور دیا ہے کہ وہ بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں تجویز کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمات سے استفادہ کرے کہ اللہ نے انہی اپنی مخلوقات میں ان بیماریوں کی شفا کا علاج بھی رکھا ہے۔ کثرت سے ذکر الہی جہاں ہمارے دلوں کو سکون دے گا، وہاں اللہ کی رحمت ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گی اور یہ جو مصیبت کی گھڑی ہے یہ ہم سے ٹل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کورونا کی روک تھام کے لیے تفتان بارڈر پر وفاقی حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھا دیے۔ وہ کہتے ہیں ایران سے آنے والے زائرین کو 14 دن بارڈر پر رکھ کر چیک کیا جاتا تھا، تو سندھ پہنچنے پر پھر سے کورونا وائرس کیسے نکلا؟ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ تافتان میں 14 روز رہنے کے باوجود سکھر پہنچنے پر زائرین کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ جب تفتان ہاؤس میں انتظامات نہیں تھے تو وہاں 14 دن زائرین کو کیوں رکھا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر سید غنی کا اعلان قابل ذکر ہے کیونکہ وہ ایران سے آنے والے زائرین کا علاج کراچی میں کرانا چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے بر وقت انتظامات نہیں کیے، وفاقی حکومت نے سستی دکھائی، اور اس کا واضح ثبوت جو ہے یہ جو ایران سے ہمارے زائرین اور مسافر اور تاجر جو ہے تفتان بارڈر سے آ رہے تھے ان کو 14 دن وہاں پر رکھا گیا۔ 14 دنوں کے بعد جب انہیں روانہ کیا گیا اور سکھر میں جو کاروان پہنچا جب ان کو چیک کیا گیا تو ان میں سے بہت سارے جو ہیں کورونا کے مریض نکلے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں لوگوں کو 14 دن وہاں رکھا۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کو بھی متحرک ہونا چاہیے تاکہ ایسے مسائل سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو زائرین واپس کم، مشہد، زاہدان اور میر جاوا جا چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ انہیں جہاز بھجوا کر کراچی منگوایا جائے تاکہ ان کا اپنے وطن میں علاج ہو سکے۔ ملک میں کورونا کا خوف، تفتان بارڈر پر ایران سے آنے والے زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لواحقین پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ تفتان بارڈر پر چیک اپ کی بجائے زائرین کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ حکام کے خلاف عدالت میں دائر درخواست کر دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ تفتان بارڈر پر پاکستانی حکام زائرین کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کر رہے۔ تفتان بارڈر پر پہنچنے پر ایران کے حکام زائرین کا مکمل کورونا کا چیک اپ کر کے NOC جاری کرتے ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر حکام ان کو قرنطینہ میں 2 دن تک انتظار کروانے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں۔ زائرین کو جس کیمپ میں رکھا جاتا ہے اس میں بھی صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے علاوہ موسم کی سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں بیماری لگنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ قرنطینہ میں رکھنے کے باوجود حکام ہمیں متعلقہ ضلع کے آئسولیشن وارڈ میں مزید 14 دن کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ درخواست گزار نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا کر دی۔ کورونا وائرس سے دلہا کے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ پولیس نے قومی سلامتی کے فیصلے کے تحت کارروائی کرتے ہوئے بارات رکوا دی۔ باراتیوں سمیت دلہا گرفتار، ایک کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔
कोरोना ने शादी के रंग में भंग डाल दिया। उकाड़ा में दुल्हा को जूता छुपाई से पहले बारात छुड़वाई की रस्म करनी पड़ गई। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पूरी बारात गिरफ्तार कर ली। दुल्हा गिरफ्तार, 1 लाख रुपया जुर्माना देकर जान छूटी। लैया में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी की तकरीब रुकवा दी, टेंट भी उतार दिए। दुल्हन के वालिद के खिलाफ दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। दीपालपुर में भी दुल्हा के ख्वाब अधूरे रह गए। पुलिस ने बारात पर छापा मारकर दुल्हा को बारातियों समेत जेल की राह दिखा दी। पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर दफा 144 के नफाज के तहत कहीं भी 4 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते हैं। कोरोना के खौफ से सऊदी अरब में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। सेहत, सिक्योरिटी, फौजी शोबों के अलावा तमाम महकमे 16 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना के मजीद फैलने के खदशे के तहत फार्मेसीज और सुपर मार्केट्स के अलावा तमाम कारोबारी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। जद्दा में हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे करवाने का फैसला हुआ है। दहशत की अलामत बने कोरोना वायरस ने सऊदी अरब में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। वजारत सेहत ने आलमी इदारा सेहत की तरफ से मुरतब करदा सिफारिशात के मुताबिक शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम उठाना शुरू कर दिए। सऊदी अरब में इमरजेंसी नाफिज हो गई। मुल्क भर में तमाम सरकारी दफातर में अगले 16 रोज तक मुलाजमीन को हाजिरी से रोक दिया गया। महकमा सेहत, कौमी सलामती, मुसल्लह अफवाज और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम महकमों के मुलाजमीन बदस्तूर अपने दफातर में काम करेंगे। कोरोना वायरस के मजीद फैलने के खदशे के तहत फार्मेसियों और सुपर मार्केट्स के अलावा दीगर तमाम कारोबारी सरगर्मियां भी रोक दी गयी, जबकि खुली तिजारती मंडियों को भी बंद कर दिया गया। हुकूमत ने मुतलका हुकाम को सेहत के हवाले से 24 घंटे अलर्ट रहने और हुकूमत की तरफ से पाबंदियों के नवाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। जद्दा में हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे कराने का फैसला किया गया। मुल्क में बेशतर होटल और खाने पीने के मराकज बंद कर दिए गए। खाना सिर्फ पार्सल के जरिए घर मंगवाने की इजाजत होगी। पब्लिक मकामात, सड़कों, पार्कों में जमा होने से सख्ती से मना कर दिया गया। तमाम कंपनियों, प्राइवेट इदारों और फलाही इदारों को हिदायत की गई कि वो अपने दफातर के अमले को महदूद करें। तमाम निजी कंपनियों को हिदायत की गई कि वो बाहर से आने वाले तमाम मुलाजमीन को 14 दिन के लिए करंटीना मुंतकिल करें। बरतानिया में कोरोना के खौफ के साए गहरे होने लगे हैं। लॉकडाउन के खदशे के पेश नजर स्टोर्स पर रश बढ़ गया है। अशिया खुरनोशी, जखीरा अंदोजी के सबब स्टोर्स खाली हो चुके हैं। कोरोना के खौफ ने तहजीब याफ्ता कौमों को तमीज भुला दी। बरतानिया में कोरोना वायरस से शहरी खौफ में मुब्तला होना शुरू हो गए। लॉकडाउन के खदशे के पेश नजर शहरियों ने अशियाए खुरनोश की बड़े पैमाने पर जखीरा अंदोजी शुरू कर दी, जिससे कई इलाकों में स्टोर खाली होना शुरू हो गए। शहरी ट्रॉलियां लिए मारे मारे फिरने लगे। कोरोना के सबब चीन, इटली, फ्रांस और स्पेन में लॉकडाउन जारी है। फ्रांस में स्टोर्स पर रश बढ़ गया। कहीं रैक्स खाली तो कहीं लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। कुछ अमरीकी सुपरमार्केट्स ने हर बंदा 2 अशिया का कानून मुतारिफ करवा दिया। कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों ने वबा की रोकथाम के लिए इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। बेशतर ममालिक में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुख्तलिफ ममालिक ने सयाहत मुअत्तल कर दी है। मुतासरा ममालिक ने कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठा लिए। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा, रियासत विक्टोरिया, सर्बिया और स्लोवाकिया में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। चेक रिपब्लिक में लोगों को गैर जरूरी बाहर न निकलने की हिदायत जारी कर दी गई। नेदरलैंड में 6 अप्रैल तक रेस्टोरेंट्स, कैफे और स्कूल बंद रखने का ऐलान हो गया। डिज्नी ने 17 मार्च से शिमाली अमरीका में तमाम स्टोर बंद करने का ऐलान कर दिया। जनूबी कोरिया ने यूरोपीय ममालिक से आने वाले अफराद की मॉनिटरिंग मजीद बढ़ा दी। लॉस एंजलिस की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कोरोना वायरस को कौमी आफत करार देकर मुल्क में 100 से ज्यादा अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। स्पेन और पुर्तगाल ने दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत मुअत्तल कर दी। लेबनान में तिब्बी सूरत हाल नाफिज करके एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर हमसाया मुल्क चीन पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दौरे का मकसद चीनी क़यादत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे तो चीन की वज़ीर ज़राअत हिंद चिंगफू और नगमाना अलमगीर हाशमी ने सदर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। सदर आरिफ अलवी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर सदर के हमरा चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीनी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू समेत ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन ने जिस तरह पाकिस्तानी तलबा का ख्याल रखा काबिल तहसीन है। कोरोना टेस्टिंग के हवाले से भी चीन ने हमारी मावनत की।
इक्तिसादी राहदारी के हवाले से दोनों ममालिक पुरअज़म हैं। उनका कहना था कि आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत को तस्लीम किया। पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ है कि अफगान मसले का कोई अस्करी हल नहीं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने करतारपुर राहदारी, FBR में इस्लाहात और फैसलाबाद, लाहौर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट समेत 5 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। कामरान चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत वजारत खजाना में एक्निक का अहम इजलास हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक एक्निक ने करतारपुर राहदारी मंसूबे पर उठने वाले अखराजात की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना से जारी एलामिया के मुताबिक करतारपुर मंसूबे पर 15 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद लागत आई। अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत होने वाले एक्निक इजलास ने FBR में इस्लाहात के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेवेन्यू प्रोजेक्ट के नाम पर बनने वाले मंसूबे पर $40 करोड़ से जायद लागत आएगी। मंसूबा आलमी बैंक के तावन से मुकम्मल किया जाएगा। एक्निक ने फैसलाबाद और लाहौर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने कच्ची कनाल के मंसूबे के बच जाने वाले हिस्सों की तकमील और बलोचिस्तान के जिला लसबेला में दरिया विंडर पर डैम की तामीर के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मातहत अदलिया के 13 जजेस को जबरी रिटायर करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने मामले को फैसले के लिए दोबारा जुडिशियल सर्विसेज को भिजवा दिया है। अदालत ने ट्रिब्यूनल को 3 माह में मातहत अदलिया के जजेस की अपीलों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में KP की मातहत अदलिया के जजेस की बरतरफी के केस की समाअत हुई। जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने बरतरफी को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जज शाह हुसैन के असासों में 2 साल में 3 गुना इजाफा हुआ। अदालत ने कहा कि जज के असासे सीनियर सिविल जज बनने तक 64 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख से जायद हो गए। वकील जज शाह हुसैन ने कहा कि आमदन से जायद असासों का इल्जाम शोकाज में नहीं लगाया गया। मेरे मोक्कल ने परफार्मा में अपनी जायदाद की मार्केट वैल्यू बताई, असासे वही थे, मार्केट वैल्यू ज्यादा बताई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि असासों की मार्केट वैल्यू बताने का कहां लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने KP की मातहत अदलिया के 13 जजेस को जबरी रिटायर करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मामले को फैसला के लिए दोबारा जुडिशियल सर्विसेज को भिजवा दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल को 3 माह में मातहत अदलिया के जजेस की अपीलों पर फैसला करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल जजेस की ACR के साथ असासों में इजाफे के मामले का जायजा लें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की हल्फबर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर शरीक हुए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा कि लोग अगर खून खरीद कर लगवाएं भी तो मरीजों की जिंदगियों को खतरा होता है। सिंध हुकूमत गैर मयारी ब्लड बैंक्स के खिलाफ मुहिम शुरू क्यों नहीं करती? देखा जाए कि ब्लड बैंक्स आज के जदीद दौर के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। अदालत ने फरीकैन से 31 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी अस्पतालों के अतराफ गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंकों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि ब्लड बैंक को रेगुलेट कौन करता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ब्लड बैंक हेल्थ केयर कमीशन के मातहत नहीं आते। अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। लोग अपना खून देकर खून लेते हैं। आप ब्लड बैंक चलाने की इजाजत उन चीजों को देख कर देते हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बहुत से ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग की कोई किट्स नहीं। अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ये एक अहम मामला है, इनको देखें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि मामला बहुत हसास है, इसको संजीदगी से देखना पड़ेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि कराची में बेइंतहा ब्लड बैंक खुले हुए हैं, इनको कोई चेक करने वाला है भी या नहीं। सिंध में कोई अथॉरिटी है जो इन ब्लड बैंक्स को चेक करे? अदालत ने कहा कि लोग अगर खून खरीद कर लगवाएं भी तो मरीजों की जिंदगी को खतरा होता है। सिंध में हुकूमत गैर मयारी ब्लड बैंकों के खिलाफ मुहिम शुरू क्यों नहीं करती? देखा जाए कि ब्लड बैंक्स आज के जदीद दौर के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। अदालत ने फरीकैन से 31 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब के 15 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान 86 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम के वर्कर्स को सैनिटाइजर्स फराहम नहीं किए गए। अहमद कमाल रिपोर्ट करेंगे।
لاہور سمیت پنجاب کے 15 اضلاع میں آج سے انسداد پولیو مہم شروع ہو چکی ہے۔ انسداد پولیو مہم میں لاہور، راولپنڈی، میاں والی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور، لیا، فیصل آباد، قصور، ننکانہ صاحب، اکاڑا، سائی وال اور شیخو پورہ کو شامل کیا گیا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، اکاڑا اور راجن پور میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ وائرس کی موجودگی کی وجہ سے پنجاب بھر میں بچے اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام نے گھر گھر ہسپتال اور گزرگاہوں پر قطرے پلانے کے لیے 20,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 86 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ گزشتہ سال پنجاب میں پولیو کے 12 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں اس سال پولیو سے اب تک 29 بچے متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے خدشات کے باوجود کسی بھی پولیو ورکر کو سینیٹائزر نہیں دیے گئے، جبکہ پولیو کی ایک وائل سے تقریباً 8 بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں۔ پولیو ڈراپس منہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس سے وائرس پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کورونا وائرس ایمرجنسی کی صورت میں پولیو مہم میں حفاظتی اقدامات کے SOPs ہی نہیں بن سکے ہیں۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ احمد کمال، سچ نیوز، لاہور۔ کراچی نارتھ ناظر آباد کوثر نیازی کالونی میں واقع رہائشی عمارت ایک طرف جھکنے والی عمارت کو توڑنے کا عمل جاری ہے۔ عمارت میں 8 سے زائد خاندان رہائش پذیر تھے۔ انتظامیہ نے فوری طور پر نوٹس لیا اور درجنوں لوگوں کی جان بچا لی۔ کراچی کو ایک اور بڑے سانحے سے بچا لیا گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کوثر نیازی کالونی میں چھوٹے سے پلاٹ پر 3 منزلہ عمارت نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جسے فوری طور پر خالی کروایا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ SBCA حکام کی جانب سے فوری طور پر عمارت کو گرا کر 90 سے زائد شہریوں کی جان بچا لی ہے۔ عمارت میں تمام لوگ کرایہ دار تھے۔ اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا تو آج بہت بڑا سانحہ کراچی میں ہو جاتا۔ کم سے کم 90 افراد اس میں رہتے تھے اور کرایہ دار تھے۔ مالک کو لے آئے، پولیس حیدری تھانے میں ہے مالک۔ یہ بلڈنگ 11 انچی اپنی جگہ سے کھسک چکی تھی۔ کئی بار درخواست دی، سندھ کچی وادی کا علاقہ ہے، سندھ کچی وادی کے تمام افسران کی نالج میں، لیکن کوئی ایکشن نہیں۔ ابھی بھی اس علاقے میں 3-4 بلڈنگیں ایسی ہیں جو بالکل کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتی۔ خیال رہے کہ گزشتہ رات عمارت ٹیڑھی ہونے کے بعد حکام نے عمارت کا جائزہ لیا تھا اور عمارت کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق محکمہ کچی آبادی کی جانب سے جعلی لیز دے کر عمارت بنانے کی اجازت دی گئی تھی۔ عمارت کے مالک محمد حنیف کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کیمرامین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ اب بات کریں گے مقبوضہ وادی کی، تو مقبوضہ وادی کے نہتے مظلوم کشمیری 225 روز بعد بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 90 لاکھ مسلمانوں کو ادویات اور خوراک سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بچے بلک رہے ہیں، مریض بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کشمیریوں پر بھارتی جبر و تشدد 8ویں ماہ میں داخل، وادی میں ادویات اور خوراک ناپید ہیں، ڈاکٹر غائب اور اسپتال ویران پڑے ہیں، سڑکیں ٹریفک سے خالی ہو کا عالم ہے، بازار مارکیٹس پر سناٹا چھایا ہے، شٹر ڈاؤن، تالے پڑے ہیں، اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی ادارے طلباء کی راہ تک رہے ہیں، وادی میں ذرائع مواصلات بھی بلاک ہے، عالمی دنیا سے رابطے ممکن ہی نہیں۔ RSS گنڈے بھارتی فورسز کی وردیاں پہنے خواتین، بچوں، بچیوں کو ہراساں کرنے میں لگے ہیں، جیلیں کشمیریوں سے بھر دی گئی ہیں، جبکہ حریت قائدین گھروں میں نظر بند ہیں، چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قابض بھارتی فورسز کے مظالم سہتے نہتے مظلوم مسلمان آج بھی عالمی برادری اور دنیا بھر میں مقیم 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں پر نظر جمائے اور آس لگائے بیٹھے ہیں۔ عالمی برادری کسی بڑی عالمی جنگ یا حادثے کی پرواہ کیے بغیر ذاتی مفادات کی غلام بن کر رہ گئی ہے۔ مودی سرکار کے قوم پرست ایجنڈے کے سبب بھارت میں مسلم اور ہندو کمیونٹی کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمان نوکریوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ نئی دلی میں ہونے والے فسادات نے ہندو مسلم تقسیم کی بنیاد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں ہونے والے فسادات سے بھارت میں مقیم ہندوؤں کا صفاق چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ عرصہ دراز سے ایک ساتھ رہائش پذیر ہندو اور مسلم آبادی کا گنجان آباد دہلی کا علاقہ یمونا بہار کا سکون برباد کر دیا گیا۔ دہلی فسادات نے بھارت کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے کی کلی کھول کر رکھ دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندو قوم پرست ایجنڈے کے سبب مسلم اور ہندو کمیونٹی کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا۔ شمال مشرقی دہلی کے فسادات سے متاثرہ دیگر اضلاع سمیت یمونا وہار میں ہندو رہائشی بلاکس، دکانوں کے ساتھ ساتھ مساجد
और मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ हिंदू बिरादरी ने ताजरों का बाइकाट कर रखा है और मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत हासिल करने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो ऐसे वक्त में मुलाजमतें ढूंढने पर मजबूर हैं जब कोरोना वायरस जैसे वबाई मर्ज ने भारत की मईशत को लपेट में ले रखा है। स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग के सनसनीखेज मुकाबले मुनक्किद हुए हैं जिसमें इतालवी खिलाड़ी ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से फतह समेटी है। स्विस शहर वेस्टरनास के बर्फपोश पहाड़ों पर फ्री स्टाइल स्नोबोर्डिंग के दिलचस्प मुकाबले हुए जिसमें यूरोप भर से नामवर विमेंस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी महारत के जौहर दिखाए। मुकाबलों में इतालवी खिलाड़ी मोली ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको पीछे छोड़ दिया है। मुकाबलों में दूसरी पोजीशन फ्रांसीसी खिलाड़ी ने अपने नाम की जबकि तीसरी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की स्नोबोर्ड ने अपने नाम की। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।